ଏକୋଇଶକୁଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼, 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଏକୋଇଶକୁଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୁନି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଙ୍କି ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆନ୍ନାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ନାମଯଜ୍ଞ, ଅନଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଗୋଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଯଜ୍ଞ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଆଜିଠୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଗୋଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଜିତ ନାୟକ, ଥାନାଧିକାରୀ କୁମାର ମୁଦୁଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଜ୍ଞର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ଏମ୍ପି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏତେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଏମିତି ହେବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକୋଇଶକୁଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଏଠି ବୁଲିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ ପୁଣି ସତେ କି ରଥାରୂଢ଼ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବିରାଜମାନ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏକୋଇଶକୁଣ୍ଡିଆ ମହାଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଅଦ୍ଭୁତ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଏବଂ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡପ ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଏକ ଘାଡ଼ି ମେ ଆଧି ଗାଡ଼ି, ଆଧି ମେ ପୁନିଆଦ, ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗତ ସାଧୁ କେ ହରେ କୋଟି ଅପରାଧ। ଆମେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଦାସ जी ଏହା କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ରହିଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ନା ଆମର କେତେ ଅପରାଧ ପଳାଏ। ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ଅଭାଗ୍ୟ। नमस्कार, मोर परिचय कौन? मु तुम बापार पुओ, मो स्त्री स्वामी आ माकेर बापा प्रीतिरंजन प्रधान। सर आज भंजनगर विश्व शांति यज्ञ 21कुंड महायज्ञ जोटा कि समस्ते आज बहुत व्यस्त अच्छा दुनिया। तो से व्यस्तबहुल जीवन भितर जदि यही 3-4 दिन हो 22 तारीख रु 27 तारीख 21कुंड महायज्ञ भंजनगर जदि आसिकी से संथ मानकर यज्ञर जो मंत्र उच्चारण होती से कानरे बाजे, आप हाथ में से सत मानकर पादधूली लगे ताकू नहीं आप मुंडे मारती, एत शांति लगुच। आज मुझे सपरिवार सहित आसती भंजनगर विश्वकुंड 21कुंड महायज्ञ को सपरिवार आम आन्ना कमेटी परिवार पूरा आसलु। केवल मधु को छाड़ी सी ए बाहर अच्छे जम्मू कि धर्मपत्नी सागर आसते। तो बहुत खुशी लगे, समस्ते एत आनंद उल्लास बुलिलु, यज्ञ पूरा देखिलु, प्रसाद सेवन कलु। एत फास्ट एरिया कृषक बजार में आउ सब बहुत धन्यवाद देवु ये जो आयोजक जो आयोजन कर भंजनगरवासी एवं प्रशासन एवं राजनैतिक एवं साधारण जनता समस्त इच एंड एव्री पर्सन जो मैंने यज्ञ सहित जड़ित अच्छा समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद ना कौन सब समस्त बहुत भल लगे। आते गहली बापरे लोक खबर पाई पूरा
जबरदस्त गहली होता समस्ते आशीर्वाद नहीं जाइए आपण मैंने भी आसतु जो 21 कुंडी महायज्ञ होती भंजनगर जगह प्रसाद सेवन कले बहुत बढ़िया प्रसाद सेवन कलु शांति प्रसाद सेवन कलु एवं खुशी लगे। आपण जीवन भितर एमती के देखी यज्ञ यज्ञ तो अनेक जगह को जाइछु आमे किंतु ये जो यज्ञ होइछि कोटा तो बड़ स्थान कि खराब भल कहि परिबुनी किंतु यदि आजिका डेट को विचार करा जाए जेते यज्ञ जाइछु ता भितर ये अन्यतम एवं बहुत खुशी लागला बहुत शांति लागला आध्यात्मिक चिंताधारा मनुष्य निश्चित शांति पाइबे ठीक रामायणी मैं श्री अयोध्या धाम श्री राम लला के जन्मभूमि से आया हूँ। जो भंजनगर में हो रहा है, उड़ीसा की भंजनगर में हो रहा है 21 कुंडी महायज्ञ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो करने से क्या प्रभाव पड़ता है वो समाज को? इस भंजन नगर में मैं इस यज्ञ में पहली बार आया हूँ और इस यज्ञ के माध्यम से ही आया हूँ। यद्यपि इस यज्ञ में बहुत दूर दूर से आए हैं, जैसे कि दिल्ली से आए हैं, गंगोत्री से आए हैं, जमुनोत्री से आए हैं, काशी से आए हैं, अन्य अन्य तीर्थों से अभी और संत लोग आने वाले हैं। वैसे जिस स्थान में यज्ञ होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसे श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जी का वाक्य है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाद प्रजापति ही। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान प्रजापति ने यज्ञ और प्रजा दोनों को साथ सृजन किया था और उन्होंने कहा था कि हे प्रजाजनों, तुम लोग यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करोगे तो देवता लोग तुम्हें समय अनुसार, जैसे कि वर्षा ऋतु में वर्षा करेंगे, ग्रीष्म में तपन करेंगे, हिम ऋतु में ठंडा देंगे, वो समय समय के अनुसार देवता लोग तुम्हारा पोषण करेंगे। तो सभी को यज्ञ करना चाहिए। वैसे यज्ञ विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सात्विक यज्ञ होता है वह यज्ञ जीवन में अपने के साथ साथ पूरे समाज को उत्कर्ष प्रदान करता है, कल्याण प्रदान करता है। जैसे कि श्रीमद् रामचरितमानस जी में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं और वह यज्ञ करते हैं बक्सर की भूमि में। उनके यज्ञ को महाराक्षस जो सुबाहु मारीच है वह नहीं होने देता है, नष्ट करता है। तो महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या जी आते हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं, अपने यज्ञ को संपन्न कराते हैं। वहीं पर एक यज्ञ मिथिला में हो रहा होता है, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। और संयोग की बात यह है कि इस भंजन नगर में जिस ऋतु में यज्ञ हो रहा है वह हिम ऋतु और ये अगहन मास है। संस्कृत शास्त्र में कहा जाता है अग्रहायण, यानी ये अग्र मास है और ये बड़ा ही पुनीत मास है। इसी महीने में भगवान श्री रामचंद्र जी का भगवती श्री सीता जी से जनकपुर में विवाह हुआ था। तो वह धनुष यज्ञ था। वह धनुष यज्ञ ऐसा था कि उसमें तमाम देश देश के राजा लोग आए थे, परंतु किसी से वह धनुष टूट नहीं पाया था, हिल नहीं पाया था। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ जा कर के उस यज्ञ को संपन्न कराते हुए धनुष को तोड़ करके भगवती श्री सीता जी के कर कमलों से जयमाल ग्रहण करके विवाह कार्य संपन्न करा करके और फिर जब अयोध्या जी में वापस आते हैं तो उनको ये चिंता होती है कि जो विभिन्न प्रांतों में, जैसे कि दक्षिण तरफ जो रावण आदि असुरों का आतंक है, जहाँ की ऋषि महात्मा लोग ठीक से यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास करते हैं। यद्यपि उस वनवास में माध्यम है कैकेयी माता, पर उसमें भगवती श्री सरस्वती देवताओं के कहने से श्री कैकेयी माता से वरदान मंगवाता है 14 वर्ष के लिए वनवास। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या जी के राज को त्याग करके चलते हैं, जो खुश होकर के वन में जा कर के और वहाँ जा कर के उन दुष्ट आताताइयों को, राक्षसों को, दुर्दांत असुरों को संहार करके श्री अगस्त, वाल्मीकि, भरद्वाज, सरभंग जैसे ऋषियों को वहाँ पर मुक्त कराते हैं उन असुरों के आतंक से। तो यज्ञ के द्वारा होता यह है कि सात्विक वातावरण की स्थापना होती है। और आपके चरण के माध्यम से आपके जो श्रोता लोग हैं उन सबको मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जबकि 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला सरकार अयोध्या जी में अपने दिव्य भव्य श्री राम मंदिर में विराजित हो गए हैं, उसी दिन से श्री राम राज्य की स्थापना शुरू हो गई है। अब इस राम राज्य का एक दूसरा अंग है कि भंजन नगर में यह जो 21 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ से सभी प्रजाजनों के संदेश दिया जा रहा है
कि भैया हो अब श्री राम राज्य आ गया है, आप सब सचेत हो जाइए और अपने स्वधर्म को समझिए, पहचानिए। जब तक अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जाति, मजहब, धर्म में बंटने से आप अलग अलग होते रहेंगे। इसलिए सब एक हो करके भगवान श्री राम जी के राज्य की व्यवस्था में अनुकूल हो जाइए। और श्री राम राज्य की पंक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। जिसका अर्थ यह है कि सभी मनुष्य अपने धर्म को प्रतिपालन करते हुए, अपने धर्म को प्रतिपालन करते हुए और प्रेम के साथ सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं। ये हमारा भारत देश है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हम कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ दुख भाग भवेत। तो हम चाहते हैं कि सब सुखी हो, सब निरोग हो। और इस यज्ञ का भी यही उद्देश्य है कि जिसमें गौ माता का रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो और सब में सद्भाव हो, समरसता हो, सबका आपस में प्रेम हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी का व भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का व जगन्नाथ भगवान महाप्रभु का, ये सभी इन भगवानों का अवतरण इसीलिए होता है, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ये चार है धर्म के मूल, ब्राह्मण, गौ, संत, ये चार है, विप्रधेनु सुर संत हित। इन चारों के लिए भगवान का अवतरण होता है। यदि धरनी बनी रहेगी, पृथ्वी बनी रहेगी, गौ बनी रहेगी, ब्राह्मण बने रहेंगे, संत बने रहेंगे, तभी जाकर के शाश्वत सनातन धर्म बना रहेगा। तो सनातन धर्म रक्षित हो, इसीलिए यह यज्ञ विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। गंजाम जिला ब्यूरो अमरेंद्र कुमार पटनायक की रिपोर्ट, सकाळ खबर।